Hello students. So we are continuously studying the motion in plane. Today our topic is velocity at any point in projectile motion. Okay. So let's see. The topic is velocity at any point in projectile motion, right? So this one is topic. So let us draw the diagram to explain the topic. So you can see here, this one is the diagram, this one is the velocity through which the projectile is thrown, this one is uy, and this one is ux, right? This angle is theta. So now RM is to find out velocity at any point. You can choose either point P, that is highest, or any other point. Suppose this one is the Q. Okay, so at this point you can write the velocity suppose this one is point Q. Okay, now the horizontal velocity must be same, that is ux is equal to vx, but the vertical component must be something change. Okay, so the vertical component must be changed here. So at point Q, suppose this one is point Q, so RM is to find out velocity at Q. We can write here, we can write ux is equal to vx is equal to constant along x-axis, right? Now Vy is something different, means the final velocity along y-axis at point Q is something different than the initial velocity uy. So Rm is to find out the velocity at point Q along y-axis. So velocity at Q along y-axis is given by Vy is equal to Uy minus G into T. You can write like this. Okay, so you can see here, this one is Vx. So these Vx and Ux are same along x direction, but along y direction this Vy is something different. So but you can see the Vy and Vx at any point of this projectile motion is always perpendicular to each other. It means at point Q, the vector Vy, that is equal to Uy minus Gt, and the vector Ux, that is equal to Vx, are perpendicular to each other. So net velocity at point Q is resultant of this Vy and Vx, right? So the net velocity at point P is Q. So net velocity at point Q is V is equal to, or you can say V square is equal to Vx square plus Vy square. So this one will be equal to Vx square means Ux square, you can write like this because Vx and Ux are equal, plus Vy square means this one, Uy minus Gt whole square. Okay, now you can solve this one for a minus b
whole square. So you can write here v square is equal to ux square plus uy square plus g square t square minus 2 times uy into g into t. You can see here this one is a minus b whole square. If you break this by a minus b whole square, you will get a square ux square b square minus 2ab type. Okay, now you can rearrange this equation and you will get the resultant value. So to proceed, I am going to erase this part. You should pause your video and you can note down. Okay, so let me erase. So now you can see here v square is equal to u square ux square plus uy square plus g square t square minus 2 times uy into gt. V is equal to under root ux square plus uy square plus g square t square minus 2 uy into gt. So this is the formula, this is the final formula to find out the velocity at any point in this motion. If you want to find out the velocity at the point of projection, or you can say the initial velocity, so you should put here t is equal to 0 and you will get the initial velocity. And if you want to find out the velocity, final velocity at any point, you must need time for that purpose. If you know time and the initial components ux and uy of velocity, then you can easily find out the velocity at any point in this motion. So I hope you understand how you can find out the velocity at any point in projectile motion. This is very important topic and you should know how to find out the velocity at any point in this motion, right? So this one is one of the most important topic. Now we are going to find out some interesting points related to the projectile motion. So for that purpose we need another diagram for to understand that concept. So before drawing that diagram, you should note down these things, pause your video and note down. I am going to erase these things and we are now going to proceed for the next topic, that is some important points related to projectile motion. Okay. So note students, you can see this one is the path of a projectile. Okay, in this you can see if this is point Q, you must get some point R, or you can say L at the same height, but the time are different. You can see ये आपको ये पॉइंट पहले मिलेगा जब प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगा इस पाथ पे, तो आपको दिख रहा है ये Q और ये L, दो ऐसे पॉइंट हैं जिनका एक्स एक्सिस की साइड हाइट जो है
इक्वल है, बट ये टाइम t1 पे है और ये t2 टाइम पे है। आप जब भी एंगुलर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये केस जरूर मिलेगी। इट मीन्स at two different times t1 and t2 the projectile is at the same height from the x-axis। तो आपको इन दोनों टाइम कौन कौन से टाइम पे होंगे इसकी वैल्यूज कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिन पे कि क्या होगा, इनकी हाइट सेम होगी दो डिफरेंट पॉइंट पे, बट मैक्सिमम हाइट का पॉइंट सिर्फ ओनली वन एक ही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट P एग्जिस्ट करेगा और एक ही टाइम पे होगा। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देख रहे हैं H1 यहाँ पे मिलेगा, Q और L दो ऐसे पॉइंट हैं इस पूरे प्रोजेक्टाइल में। Q के अगर यहाँ पे आप कोई और पॉइंट चूज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट इधर मिलेगा। अगर यहाँ चूज करते हैं देन इधर मिलेगा, ठीक है। यहाँ चूज करते हैं तो इधर मिलेगा, यहाँ चूज करते हैं तो यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो दो प्लेस पे सेम हाइट पे होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। बट उसके टाइम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद अगर देखें कुछ और पॉइंट्स, ये फर्स्ट डिस्कस किया। सेकेंड आते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं एनर्जी और मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। Momentum of particle or body, you can say, in projectile motion। तो देखेंगे कि जो मोमेंटम है वो कितना है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है मोमेंटम की डिफिनेशन P इज इक्वल टू m इंटू वी, ये है डिफिनेशन। m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पे देखिए, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है किसी कंडीशन में तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आपको जिस टाइम पे मोमेंटम चाहिए उसी टाइम का आपको वेलोसिटी वहाँ पे यूज करना होगा इस प्रोडक्ट में, एंड यू विल गेट द magnitude of momentum। Since you know that momentum is a vector quantity, so you can find out the direction as well at that point by the tangential direction, right? So ये तो है मोमेंटम की डिफिनेशन। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं कि मोमेंटम कैसे वेरी कर रहा है, क्या अलग अलग जगह पे मोमेंटम वेरिएबल है या फिर सेम है। तो अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे अगर आपने u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है तो इसका कंपोनेंट uy एंड ux आपको मिल गया यहाँ पे, इसके कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा वो भी दोनों एक्सिस पे यहाँ पे रिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे p along x एक्सिस की अगर हम बात करें, along x एक्सिस जो मोमेंटम मिलेगा वो होगा px इज इक्वल टू m इंटू ux, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। एंड along y एक्सिस मोमेंटम क्या होगा, py इज इक्वल टू m इंटू uy, इतना मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। px इज इक्वल टू m इंटू ux, py इज इक्वल टू m इंटू uy, ये दो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मोमेंटम है इनिशियल, ये है इनिशियल मोमेंटम
और ये भी इनिशियल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। ये एक्स एक्सिस पे है और ये क्या है, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखें यहाँ पे रिजॉल्व करना चाहें तो आपको ऐसे मिलेगा, इधर मिलेगा आपको पी वाई और इधर मिलेगा पी एक्स। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, m इंटू यू वाई और इसकी वैल्यू है m इंटू यू एक्स। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे इस मोशन में इसका मोमेंटम बॉडी का। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आप चेक करेंगे कि कितना कितना मोमेंटम आपको मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको कितना कितना मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिफरेंट पॉइंट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखेंगे along x एक्सिस यू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो आपको पी एक्स क्या होगा, m इंटू यू एक्स और ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक्सिस पे मोमेंटम जो है ये वाला, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में ही कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। along y एक्सिस, along y एक्सिस की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो वेलोसिटी y एक्सिस पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे u y जो है ये क्या है, वेरिएबल। तो जैसे u y वेरिएबल हो गया, यहाँ पे पी वाई इक्वल टू m इंटू यू वाई, ये भी क्या है, वेरिएबल। अब ये मोमेंटम पी वाई इक्वल टू m इंटू यू वाई भी वेरिएबल है। तो जैसे ये वेरिएबल है, अब इसकी वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा यू वाई की वैल्यू पे। ठीक है, अब यू वाई की वैल्यू बोल लीजिए या आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू पे एक्चुअल में। तो अगर टू डिफरेंट पॉइंट पे, ये देखिए इनिशियल, ये जो वैल्यू है एक्चुअल में ये इनिशियल हो गया इसमें, और फाइनल वैल्यू कैसे मिलेगा, पी वाई फाइनल, तो ये मिलेगा m इंटू वी वाई से। अब वी वाई की वैल्यू के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला, फॉर वी वाई वी कैन यूज यू वाई माइनस जी टी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही आपको वी वाई मिल जाएगा आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है मोमेंटम से रिलेटेड इस मोशन में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इस अब आप फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आपको along x डायरेक्शन में मोमेंटम की रिक्वायरमेंट है कभी भी, तो आप आसानी से पी एक्स इक्वल टू एम इंटू यू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। along y एक्सिस जब आपको चाहिए तो यू वाई, क्योंकि यू वाई मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि velocity is variable along x axis। so यहाँ पे m इंटू पी वाई इक्वल टू एम इंटू यू वाई जो लिख रहे हैं वो है इनिशियल और वेरिएबल। पी वाई इक्वल टू फाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पे वी वाई आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वेरिएबल है, यू वाई वी वाई इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम जो भी आप लेंगे वो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पी वाई फाइनल इक्वल टू एम इंटू वी वाई, और वी वाई इक्वल टू वी कैन राइट लाइक दिस यू वाई माइनस जी टी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
और आपको इससे मिल जाएगा फाइनल मोमेंटम। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि आपको इस पूरे मोशन के किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आप चूज करेंगे तो एट एनी पॉइंट पी एक्स जो मिलेगा आपको और जो आपको पी वाई मिलेगा वो दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, पी एक्स और पी वाई। तो पी एक्स और पी वाई जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो नेट मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे आपको मिलेगा। नेट मोमेंटम एट एनी पॉइंट जो मिलेगा वो होगा P इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर मिलेगा किसी भी पॉइंट पे। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले की हेल्प से आप जो है बहुत ही आसानी से किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। इस फार्मूले से आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एंगल आप अपने अकॉर्डिंग थीटा अल्फा फाई जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा एट एनी पॉइंट। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कितना है मोमेंटम बॉडी का, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इनिशियल पॉइंट पे जानना चाहें एट पॉइंट ए मोमेंटम कितना है, एट पॉइंट ओ, सॉरी, तो पॉइंट ओ पे देखिए पी एक्स कितना है, पी एक्स है एम इंटू यू एक्स और पी वाई कितना है एम इंटू यू वाई। तो नेट मोमेंटम P इक्वल टू कितना आएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर अंडर रूट इतना आएगा। तो P इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको अंडर रूट में लिखना चाहें तो एम यू एक्स स्क्वायर प्लस एम यू वाई स्क्वायर आएगा। तो P इक्वल टू ये भी स्क्वायर होगा एम स्क्वायर, यहाँ से चाहे तो m कॉमन लेंगे और आपको मिलेगा अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो P इज इक्वल टू एम इंटू यू। सिंस यहाँ पे u जो है वही कितना है अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये मिल गया आपको इनिशियल मोमेंटम है ये। ओके, तो आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल रहा है। P इनिशियल इज इक्वल टू m टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे ये डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे, डायरेक्शन यहाँ पे इसकी होगी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ u। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ P सेम, डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज u vector। u means initial velocity। right, so direction of P is same as u vector, that is initial velocity vector। तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में इन दोनों वेलोसिटी और मोमेंटम को प्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए आप प्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, तो ये है एक वेक्टर और इसी पे ये यहाँ तक ये u होगा और ये होगा p। क्यों? देखिए p का मैग्नीट्यूड जो होगा वो m टाइम्स u से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे u वेक्टर इतना, इसका m टाइम्स p वेक्टर। डायरेक्शन शुड बी सेम फॉर बोथ u एंड p, सो दिस थीटा मस्ट बी
सेम फ्रॉम द एक्स एक्सिस फॉर यू एंड पी। तो ये है डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं यू एंड पी को। यू एंड पी सेम डायरेक्शन में होंगे बट पी मस्ट बी m टाइम्स द वेक्टर u। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे अगर आप किसी आर्बिट्री पॉइंट पे चाहते हैं तो वहाँ पे वी वाई की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे 2 और पॉइंट पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एक तो पीक पॉइंट पे और एक किसी भी और पॉइंट पे। देखते हैं कितना होगा। देन एट पॉइंट ओ पी, पी को हम लोग पी हाईएस्ट पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये पी है, इसकी हाइट यहाँ पे h, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन है। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन के बारे में हम क्या जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि एट पॉइंट पी वी वाई जो है वो है 0 एंड वी एक्स जो है वो इक्वल टू यू एक्स है, ठीक है। तो मोमेंटम देन पी वाई कितना होगा, पी वाई फाइनल, क्योंकि पी वाई इनिशियल तो एम इंटू यू वाई है, लेकिन पी वाई फाइनल कितना होगा एम इंटू वी वाई, और ये होगा 0, ठीक है। और पी एक्स फाइनल कितना होगा, पी एक्स फाइनल इक्वल टू एम इंटू वी एक्स, और ये होगा एम इंटू यू एक्स। देख लीजिए आप। तो यहाँ पे जो नेट मोमेंटम होगा वो होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर एंड पी वाई स्क्वायर, या फिर पी को अंडर रूट में लिख सकते हैं आप। तो ये लिखेंगे आप m इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है तो ये रूट से बाहर निकला, ये कितना है m इंटू यू एक्स, इसी को m u cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट P पे जो टोटल मोमेंटम है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जितना है उतना ही है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे नेट मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और यू कैन से टोटल मोमेंटम एट हाईएस्ट और पीक पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मिलता है, टोटल मोमेंटम एट पॉइंट P और यू कैन से हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हेंस इनिशियल टोटल मोमेंटम एट पॉइंट P इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि पॉइंट P पे या हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप किसी भी आर्बिट्री पॉइंट, जैसे कि पॉइंट कोई भी चूज कर लीजिए इस पूरे मोशन में, और उस पॉइंट पे आप कैसे पता करेंगे कि मोमेंटम कितना आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज इस मोशन में ही अगर एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे सपोज थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और जो u है उसकी वैल्यू है मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक्स एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस पे कितना होगा, और मास इसका है सपोज 5 किलोग्राम, ठीक है, या फिर 2 कर देते हैं इसको। तो एक्स एक्सिस पे पी एक्स कितना मिलेगा आपको, m इंटू यू एक्स, और ये होगा m u cos थीटा। तो आपको ये मिलेगा m की वैल्यू 2 इंटू यू की वैल्यू 10 इंटू cos 30,
तो ये होगा 2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 कितना √3/2, ये मिलेगा 10√3 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इनिशियल मोमेंटम मिल गया एक्स एक्सिस पे। अब इसकी डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है। ऐसे ही आप पी वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। पी वाई कितना होगा m इंटू यू वाई, और यू वाई की वैल्यू कितनी है एम यू कॉस साइन 30। तो देखिए m की वैल्यू 2 इंटू यू की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कितना मिला, ये मिला 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसकी डायरेक्शन कितनी किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी y एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, ये तो x एक्सिस और y एक्सिस पे आपने फाइंड आउट कर लिया। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, और टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो मिलेगा आपको P इज इक्वल टू एम इंटू यू, क्योंकि टोटल वेलोसिटी u है, तो m2 इंटू यू कितना है 10, इसको लिख सकते हैं 20 kg मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए ये तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखिए, या फिर और कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, P इज इक्वल टू m अंडर रूट, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए px कितना फाइंड आउट किया था हमने, px हमने फाइंड आउट किया था 10√3 स्क्वायर प्लस ये कितना 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने में 20 आना चाहिए हमारा, तो देखिए कितना आता है, ये आएगा 100 इंटू 3 प्लस 100, ये कितना है √300 प्लस 100। तो यहाँ पे देखिए ये √400 है, और √400 को आप लिख सकते हैं 20, ये होगा 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो नेट मिल रहा है यहाँ पे 20 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पे। तो आप या तो नेट से, अगर आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में, तो नेट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं नेट के फार्मूले से, या फिर अगर आपको वेलोसिटी नेट गिवन है यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे m इंटू यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं नेट मोमेंटम। इस तरीके से ये आपको मिल जाता है मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है।